So far we have completed, hello students, so far we have completed the complete biology and the 3 chapters of chemistry. Now this is the turn of last chapter of chemistry, that is chapter number 4, carbon and compounds. Carbon and compounds, and this chapter basically has a weightage of at least 5 to 6 marks in examination. Okay, 5 to 6 marks means it may have 1 marks question also, 2 marks also, 3 also. It can come as a case study based question also, as well as in a 5 marks question as well. So this is one of the most important and interesting chapter. Now carbon we all know it's a non-metal, okay, and it is found abundantly everywhere in the earth crust. If we see the biomolecules like carbohydrates, proteins, fats, lipids, everywhere carbon is present. So carbon is a versatile element if we say about, and major of the things are made up of carbon in all around, in the things which are surrounding us. Now, first of all, we should know what is the atomic number of carbon. Now, atomic number of carbon is 6. If I am saying 6, that means the atomic number and the number of protons that are same. So, the number of जो protons होते हैं, that is only considered as the atomic number. If I am saying 6 is the atomic number, that means the configuration what it attains, that is 2 and 4. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 एंड 4, दैट मीन्स वेरी फर्स्ट इज के शेल एंड देन एल शेल. अब इसका स्ट्रक्चर हम जब बनाते हैं तो दिस इज योर न्यूक्लियस विच हैज़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. फर्स्ट शेल विच इज के शेल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट शेल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4. नाउ एज पर द ऑक्टेट रूल 4 more electrons are required in the last shell. एक और टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, लास्ट शेल. वॉट एवर द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंस शेल. क्या बोलते हैं हम उसको? वैलेंस शेल. एंड दिस शेल अटेन्स, है ना, वैलेंस शेल इसको हम बोलते हैं. और ये वैलेंस शेल जो होता है इट 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 वर्क्स ऑन एन ऑक्टेट रूल. यदि इसको स्टेबल रहना है तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए. दैट मीन्स टोटल 8 इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर इन द लास्ट शेल. अब यहाँ पे 4 हैं. इन ऑर्डर टू बिकम एन ऑक्टेट मीन्स ऑक्टेट रूल और स्टेबल बनने के लिए कार्बन को कितने चाहिए? या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या 4 इलेक्ट्रॉन वो क्या करे? अटेन कर दे. 4 या तो लूज करे या 4 अटेन करे. बट इन बोथ द केसेस लॉट्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. सो कार्बन हैज टेकन अ मिडल पाथ. हाउ इट इज बीन डन? What it is carbon is doing? Carbon is sharing electron with other atoms, non-metals like nitrogen, hydrogen, okay, oxygen. These all are non-metals. What they are doing? If they want to complete their octet, what they are doing? They are sharing their electron with each other. And the shared electron is counted in both the shell. This kind of bonding which is present in carbon is known as covalent bonding. What do we call it? Covalent bonding. And their types decided as per the number of electrons are being shared by a carbon or any other non-metal. If they are sharing only a single electron, then it is known as single covalent bond. What do we call it? Single covalent bond. If they are sharing 2 electrons, then it is known as double covalent bond. If they are sharing 3 electrons, then it is known as triple covalent bond. Okay, so covalent bond कितने तरह के हो गए? The number of electron which they are sharing. Now let's start with the single electron. Okay, hydrogen. Hydrogen का atomic number क्या होता है? What is the atomic number of hydrogen? Hydrogen's atomic number is 1. That means it has only a single electron in its shell. एक ही शेल होगा हाइड्रोजन का और उसी एक शेल में कितना? एक ही इलेक्ट्रॉन होगा. So it is going to share the electron with other hydrogen. So this is the shared electron. Okay. और जब हम इसको काउंट करेंगे तो हम करेंगे इस हाइड्रोजन का 1 2
complete, 1, 2, complete. So this is H2, which is an example of single covalent bond. Only one electron is being shared by both the non-metals. अब 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हमारा नंबर क्या होता है बताइए? दैट इज 8. क्या होता है एटॉमिक नंबर 8. तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 एंड 6. तो लास्ट वाले में 1 2 3 4 5 6 हो गए इलेक्ट्रॉन. चलो मैं यहाँ बना देती हूँ तो आपको थोड़ा इजी आएगा. ये देखो, ये रहा ऑक्सीजन, इसका होता है एटॉमिक नंबर 8. अब यहाँ पे क्या होगा, मैं ऑक्सीजन को दिखाती हूँ. लास्ट वाले में 8 है, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 एंड 6. 2 एंड 6 पहले वाले में 2 हो गया. लास्ट वाला शेल मैं यहाँ बता रही हूँ. तो 1 2 3 4 5 6. ये दूसरा ऑक्सीजन, इसमें भी कितने हो गए 6. अब नाउ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी दिस एंड दिस. मीन्स 2 pairs of electron is being shared and 1 electron means 2 electron from each side, or you can say 2 pairs. यहाँ पे 1 pair of electron shared है. अब इसको देखो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. So again the octet rule will be completed and then it is known as double covalent bond. अब आते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. मीन्स 3 pairs of electrons are being shared. एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन का. ठीक है, अब नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन? 7. तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2 एंड 5. लेट्स मेक इट 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. This 3 is being shared by all both of them. So then it becomes 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. So how do we write it? Triple bond N. How do we write is oxygen? Double bond O. How do we write hydrogen? Single bond H. So this is single covalent bond. This is an example of double covalent bond. This is the example of triple covalent bond. Let's revise it once again. How we have done it? H, H, single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond. आया समझ में? तो यहाँ पे जो पेयर हो रहा है शेयर, दैट इज ओनली वन सिंगल पेयर ऑफ. यहाँ पे जो शेयर हो रहा है दैट इज 2 पेयर और टोटल 4. और यहाँ पे कितने शेयर हो रहे हैं 3. Okay, so these are the types of covalent bond which usually found between non-metal and non-metal. ठीक है, हमने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में आयनिक बॉन्ड. उसमें क्या हो रहा था कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो कभी कभी डिफरेंस आता है कि कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड में डिफरेंस बताओ. तो पहला डिफरेंस क्या है कि आयनिक बॉन्ड जो है उसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है एंड इट इज अ बॉन्ड बिटवीन नॉन मेटल एंड मेटल. बट व्हेन वी टॉक अबाउट कोवलेंट बॉन्ड, it is a sharing of electron between two non-metals. Okay, one more thing, there is some physical properties if we talk about this also. So physical properties में पहली property होगी the bond is weaker in comparison to ionic bond. weak bond होता है and they are not very good conductor of electricity. They usually conduct electricity but they are not very good conductor of electricity. So these are the major properties regarding the covalent bond. ठीक है, अब हमें पता है कार्बन है ना, और कार्बन का बहुत वर्सेटाइल नेचर होता है, वी ऑल नो. अब इसमें कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स में भी प्रेजेंट रहता है. कार्बन यूजुअली फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स एज वेल. अब इन फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. क्या बोलते हैं उसको? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. बेसिकली एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जो होते हैं 3 हम यूजुअली पढ़ते हैं. एक पढ़ते हैं हम डायमंड, एक पढ़ते हैं हम ग्रेफाइट एंड एक पढ़ेंगे हम फुलरेन्स. Allotropes of carbon means they all are made up of carbon, but their appearance is different. So the physical properties can be different, but chemical properties are same because they are made up of carbon only.
ठीक है, इनको बोलते हैं हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। डायमंड द हार्डेस्ट सब्सटेंस, तो इसमें कार्बन के जितने भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल के, वो दूसरे 4 के साथ बॉन्ड बनाते हैं। सो देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन दिस, एंड इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, इट हैज इट्स ओन लस्टर एज वेल, एंड इट इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज डायमंड। तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नोन एज टेट्राहेड्रॉन। द स्ट्रक्चर इज नोन एज टेट्राहेड्रॉन। अब आता है ग्रेफाइट। ओके, ग्रेफाइट में क्या होता है, अगेन 4 तो होती ही वैलेंस में इलेक्ट्रॉन, बट इट बॉन्ड्स विथ ओनली 3 इलेक्ट्रॉन। हर एक जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन के साथ ही बॉन्ड बनाता है। सो इन ईच बॉन्डिंग 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज हेक्सागोनल, एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री, दैट इज व्हाई इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये स्लिपरी होता है, स्लिप हो सकता है एक दूसरे के ऊपर। फुल रेंज जो होता है दैट इज जस्ट लाइक अ बॉल, फुटबॉल बॉल होती है उसके जैसा होता है, एंड इट वाज discovered by Buckminster Fullerene, and on the name of Buckminster Fullerene, the name Fullerene has been given. Now the name has been given, the number of carbon it is present. So very common is C60, it can be C70, it can be C80. This 60, 70 and 80 number demonstrate that how many carbon are present in this, and they just look like as a football. फुटबॉल होती है, ये फुटबॉल में ऐसे चेक्स बने होते हैं, बस ये ऐसे ही लगता है। ठीक है, सो दीज आर द मेजर डिफरेंस इन बिटवीन। सो दे हैव अ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, but they will be having same chemical properties because they are made up of carbon only, and the carbon is present in different forms. These are known as allotropes of carbon: diamond, graphite and fullerene. Okay, so these are the solid allotropes if you talk about. अब मैं यदि बोलूं अमॉर्फस, अमॉर्फस मीन्स जो कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, एक तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, एक अमॉर्फस में होते हैं। सॉलिड फॉर्म में ये सारे हैं, दिस ऑल कम इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, अब अमॉर्फस की मैं बात करूँ तो उसका शेप और कुछ भी डिस्टिंग्विश नहीं होता है। जैसे कोल, कोक, उसका कोई शेप नहीं है, मैं ना उसको टेट्राहेड्रॉन बोल सकती हूँ ना हेक्सागोनल बोल सकती हूँ, इर्रेगुलर शेप, तो उनको बोलते हैं अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द एलोट्रॉप्स एंड ऑल। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय वर्सेटाइल? क्या समझते हैं आप वर्सेटाइल से? वर्सेटाइल मीन्स अ पर्सन हु हैज अ डिफरेंट क्वालिटीज। मतलब सपोज अ पर्सन इट इज अ गुड ओरेटर, इट्स गुड academically, it's a good dancer, it's a good counselor, means so many things a single person can do. The same way the carbon is able to do different type of reaction, and there is a fact whole organic chemistry is based on carbon and its compound because it shows different type of reaction. Because of this, the carbon is having versatile nature. But it has a story behind. कुछ ना कुछ तो होती है ना पीछे का, कि भाई इसके पीछे ये बात है। तो इसमें ये 2 बातें हैं कि इसका versatile नेचर 2 रीज़न की वजह से है। पहली प्रॉपर्टी जो है दैट इज़ कैटिनेशन, और दूसरी प्रॉपर्टी है उसे बोलते हैं टेट्रावैलेंट। ठीक है? पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई? कैटिनेशन, और दूसरी प्रॉपर्टी हो गई टेट्रावैलेंट। कैटिनेशन मीन्स कार्बन हैज अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। व्हाट इज द प्रॉपर्टी? दैट दे कैन मेक अ लॉन्ग चेन अटैच विथ ईच अदर, दे हैव अ एफिनिटी विथ ईच अदर। एक दूसरे से अट्रैक्शन होता है कार्बन का। सो कार्बन कार्बन आपस में जुड़ के लॉन्ग चेन बना लेते हैं, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। अब ये जो चेन है दैट इज कैन बी स्ट्रेट ऑल्सो, दैट कैन बी साइक्लिक ऑल्सो। ये ऐसी साइक्लिक भी हो सकती है, स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, इट कैन बी ब्रांच एज वेल। ये ऐसे ब्रांचें निकली हुई है इसकी, इट कैन बी ब्रांच एज वेल। सो द versatile nature is basically of two properties. Very first one is catenation, the other one is tetravalence. Catenation means they have a beautiful property to make bond with each other, and they make a long chain of carbon, long skeleton of carbon chain.
So this is known as catenation. It can be a straight chain, it can be a cyclic form, it can be in branch form. अब नेक्स्ट है टेट्रावैलेंट. टेट्रावैलेंट जो होता है दैट इज, वी ऑल नो दैट कार्बन इज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. हमें सबको पता है कि आउटर मोस्ट में 4 है. अब ये 4 है तो मीन्स दे कैन मेक 4 बॉन्ड एट अ टाइम. ये चारों क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट के साथ भी बॉन्ड बना सकते हैं और एक जैसे के साथ भी बॉन्ड बना सकते हैं. सो एट अ टाइम 4 बॉन्ड फॉर्मेशन कैन बी देयर. सो दिस इज नोन एज tetravalency. So these are the two unique feature. Because of this, the carbon is known as versatile in nature. Okay, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? आगे बढ़े. अब आगे बढ़ने में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है विच इज नोन एज हाइड्रोकार्बन. ठीक है, एज द नेम इंडिकेट, हाइड्रोजन और कार्बन मिलके जितने भी कंपाउंड बनाते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन. और बिकॉज ऑफ दिस द कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड्स ऑन हाइड्रोकार्बन. सो द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स कैन बी देयर. अब हम जब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की, तो ये कंपाउंड जो होते हैं दे आर of different types. Hydrocarbon means the bond between carbon and hydrogen is known as hydrocarbon. अब हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो हमारे पास दो तरीके के होते हैं. एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड मीन्स दे हैव ओनली अ सिंगल बॉन्ड. मीन्स मैंने कार्बन लिया और इस कार्बन को अटैच किया हाइड्रोजन से. ठीक है, अब मुझे पता है कार्बन एक बार में 4 बॉन्ड बना सकता है. तो मैं क्या करूँगी, कार्बन को सब तरफ हाइड्रोजन से जोड़ दूँगी. अब यहाँ मैं जब जोड़ रही हूँ, व्हेन आई एम गोइंग टू बॉन्ड इट, व्हाट विल हैपन, आई कैन सी ओनली अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन ऑफ देम. एक ही बॉन्ड दिख रहा है मुझे. तो जब एक ही बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड, एंड ऑल द वैलेंसीज आर फुलफिल्ड, वैलेंस शेल की सारी वैलेंसीज फुलफिल्ड होती है, देन इट इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. क्या बोलते हैं इसको, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. और इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं दैट इज नोन एज एल्केन. नाउ दिस एल्केन कैन बी अ चेन स्ट्रक्चर, इट कैन बी अ साइक्लिक स्ट्रक्चर. अब एल्केन ऐसे भी बन सकता है और ये एल्केन ऐसे भी बन सकता है ना. इट कैन बी अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, इट कैन बी अ चेन स्ट्रक्चर. ठीक, अब जनरल फॉर्मूला एल्केन का हमको देखना पड़े तो वो होता है, चलिए पहले अपन अनसैचुरेटेड भी देख लेते हैं, फिर हम वन बाय वन इसको लेंगे. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स ईदर दे हैव अ डबल बॉन्ड और दे हैव अ ट्रिपल बॉन्ड. मीन्स हमारे पास जो जोड़ने वाले हैं वो कम है, और वो कम होती है हम क्या करेंगे, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हम शेयर करेंगे. यहाँ पे हम 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम शेयर कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इफ 2 पेयर्स आर देयर देन इट इज नोन एज एल्कीन, एंड देन इफ इट इज देयर देन इट इज नोन एज एल्काइन. ओके, अब इसके बारे में एक के बाद एक डिस्कस करते हैं. सबसे पहले शुरू करते हैं हम एल्केन. एल्केन, सो इट इज एन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है एंड इसका जो जनरल फार्मूला होता है दैट इज CnH2n+2. यहाँ पे जो n होता है, हियर द n इज नंबर ऑफ कार्बन. किसको डेजिग्नेट करता है ये, नंबर ऑफ कार्बन को. ठीक है, अब सपोज द कार्बन का नंबर है 5, तो हमें एल्कीन निकालना है कि एल्कीन कैसा बनेगा. तो एल्कीन कैसा बनेगा, एन की जगह लिखोगे C5H2 × 5 + 2, ये बनेगा हमारा C5H12.
ये आपका एल्केन है। अब ये जो है, ये है कंप्रेस्ड फॉर्म। 5 कार्बन का एल्केन का स्ट्रक्चर बनाओ, ये क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, n is equals to number of carbon. Let's take example of 5 carbon. This we have done. So this is the means you can say this is not a exponent form. ये क्या है? कंप्रेस्ड फॉर्म है। अब इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म कैसे बनाएंगे देखिए। कार्बन की एक, कितने कार्बन है? 5, 3, 4, 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। देखो, पहले यहाँ से शुरू करो। एक बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, एक हाइड्रोजन, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड। कार्बन की बॉन्डिंग कंप्लीट होनी चाहिए, चारों वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। अब ये कार्बन यहाँ से भी अटैच है यहाँ पे, तो 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो 2 और बन जाएंगे। इसमें भी यही होगा और इसमें वापस 3। अब देखो काउंट करो, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन गया। सो दिस इज एक्सपोनेंट फॉर्म एंड दिस इज कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ एल्केन। आप इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है उसमें कार्बन, उसमें जो हाइड्रोजन नंबर हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। 5 ही कार्बन से लेते हैं, ठीक है। साइक्लिंग में क्या हुआ, ये दोनों भी जुड़ गए, तो इवेंचुअली एक एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो साइक्लिक में क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन कम हो गए, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें साइक्लिंग है और ये वाला जो कार्बन है वो ऑलरेडी अटैच आ रहा है, तो उसमें एक एक हाइड्रोजन कम हो गया। तो दिस कैन बी अ ब्रांच स्ट्रक्चर, दिस कैन बी अ स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर, इट कैन बी अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। दिस इज एल्केन। अब एल्केन जो होता है बहुत स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्शंस नहीं देता है। आगे हम रिएक्शन पढ़ेंगे, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इट इज़ अ स्टेबल वन। उसका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, सिंगल बॉन्ड है, बहुत स्टेबल है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं देगा। एल्केन यूजुअली डजंट शो एनी रिएक्शन। अब आते हैं हम एल्कीन पे और एल्काइन पे। देखिए, पहले शुरू करते हैं हम एल्कीन से। एल्कीन क्या करती है, डबल बॉन्ड बनाती है और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। वापिस इसमें वही है, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। अब देखो, कार्बन का नंबर 4 ले लो सपोज, ठीक है। C इज इक्वल्स टू 4, 4 होते ही यहाँ पे 4, H2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू C4H8। ये हो गया हमारा कंप्रेस्ड फॉर्म। अब इसका एक्सटेंडेड फॉर्म कैसे बनाएंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म 1 2 3 4। अब यहाँ पे मैं 3 बॉन्ड बनाऊंगी, यहाँ पे मैं बनाऊंगी 3 बॉन्ड। अब मेरे पास कितने हैं हाइड्रोजन, 2 ही बचे, क्योंकि 8 बनाने हैं मुझे। तो अब मैं क्या करूंगी, इसके बीच में, दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड डाल दूंगी, ठीक है। दोनों के बीच में मैंने क्या डाला, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होते ही 2 शेयर हो गए। तो अब देखो अपन काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए। तो ये इसमें सेटिस्फाई हो गया, तो देन इट इज नोन एज अ डबल बॉन्ड, ओके। अब शुरू करते हैं हम एल्काइन। अब एल्काइन जब हम देखेंगे, एल्कीन इट इज रिएक्टिव देन एल्केन, इससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और रिएक्शंस देता है। तो इवेंचुअली जब ये सैचुरेट होगा, इट कन्वर्ट इनटू एल्केन। एल्काइन, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2, बिकॉज इट इज हैविंग अ ट्रिपल बॉन्ड। कोई ना कोई एक ट्रिपल बॉन्ड होता ही होता है। यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, वहाँ ट्रिपल बॉन्ड। अब इसका फॉर्मूला ये हो गया। अगेन हम इसको रख के देखते हैं,
C इज इक्वल्स टू सपोज मैंने रखा 6, ठीक है, 6 कार्बन नंबर के हिसाब से अपन सॉल्व करके देखते हैं तो क्या बनेगा हमारा C6H2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा C6 12, 12 माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10, C6H10। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हो गया हमारा कंप्रेस्ड फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आया H H H, चारों सेटिस्फाइड हो गए, H H H, है ना, यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, 3 5 6 7 8 9 10, खत्म हमारे हाइड्रोजन। अब है ही नहीं हमारे पास तो हम कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे ट्रिपल बॉन्ड। जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे देखिए कैसे सेटिस्फाई करता है, इसकी वैलेंसी इसको देखिए, इस कार्बन की हो गई 1 2 3 4, इस कार्बन की हो गई 1 2 3 4, इस कार्बन की हो गई 1 2 3 4, अब इस कार्बन की हो गई 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। सो दिस इज एक्सपोनेंट फॉर्म। एल्काइन मोस्ट रिएक्टिव होता है, मींस मोस्ट अनस्टेबल। इसको सेचुरेट करेंगे फर्स्ट स्टेप में तो हमें बनेगा एल्केन, एल्कीन, और एल्कीन से फिर हमें मिलेगा एल्केन। सो दीज आर द हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। कितने टाइप के कंपाउंड होते हैं, तो इट कैन बी सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड की बात करेंगे तो एल्केन, अनसैचुरेटेड की बात करेंगे तो एल्केन और एल्काइन। अब इसमें एरोमेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। एरोमेटिक मीन्स जिनकी एक पंजेंट स्मेल होती है, एक अलग फ्रूटी स्मेल, अलग स्मेल होती है, उनको बोलते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बेस्ट एग्जाम्पल होता है बेंजीन। एरोमेटिक unsaturated hydrocarbon, okay, and the best example of this that is benzene, और benzene का फॉर्मूला क्या होता है C6H6 and it has a particular smell। और बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके का होता है। ओके, इट हैज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड इट इज समहाउ द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। ओके, यहाँ ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड होते हैं, तो ये जो पॉइंटर्स हैं ये कार्बन है, ठीक है, और इनसे हाइड्रोजन अटैच है। तो कभी कभी हम ऐसे बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बन और हाइड्रोजन गायब हो गए। मैं कभी कभी आपको ऐसे स्ट्रक्चर भी बना के दूंगी, तो यू शुड नो कि कार्बन जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन लगा हुआ है, और जहाँ पे कम है वहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से इसको सेटिस्फाई कर रखा है। सो दिस इज एरोमेटिक वर्सेटाइल हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड वन विच इज नोन एज बेंजीन। बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, और बेंजीन में बहुत सारी रिएक्शंस होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोकार्बन। अब देखो ये हमने पढ़ लिया, तो अब हमें इसका नेमिंग करना भी आना चाहिए। हाउ डू वी नेम इट। आईयूपीएससी एक ब्रांच है विच विल टेल अस हाउ विल डू द नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन स्केलेटन। हमें कैसे पता पड़ेगा कार्बन स्केलेटन को बोलना क्या है, कैसे उसका नाम देंगे। इन अ क्लास हमारे सबके रोल नंबर फिक्स होते हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि हम बार-बार जब टीचर आता है अटेंडेंस लेता है तो ज़रूरी नहीं है वो सबका नाम ले। इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो हम क्या करते हैं, रोल नंबर 1 2 3 4 करते हैं एंड एवरीबॉडी नोज़ दिस इज़ माय रोल नंबर, आई यूज्ड टू से येस मैम एट द टाइम ऑफ अटेंडेंस। द सेम वे वी शुड नो हाउ डू वी नेम द कार्बन चेन। ऐसा तो बोलेंगे नहीं 8-10 कार्बन की बना दो। भई क्या बनानी है, कैसे बनानी है? So for that you should know the root words of that. If a chain contains only one carbon, then what will be the name? If a chain contains 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon, 5 carbon, 6 carbon, 7 carbon, 8 carbon, 9 carbon and 10 carbon, then there is a root word for everything. एक कार्बन जो होती है उसका रूट वर्ड होता है मेथ, ठीक है। 2 कार्बन है तो उसका रूट वर्ड होता है एथ। 3 कार्बन का होता है प्रो। 4 कार्बन का होता है ब्यूट।
5 कार्बन का होता है पेंट, 6 कार्बन का होता है हेक्स, 7 का होता है हेप्ट, 8 का होता है ऑक्ट, 9 का होता है नोन एंड 10 का होता है डेक। सो दीज आर द रूट वर्ड्स। आपका कार्बन स्केलेटन सपोज एक कार्बन का है, तो उसका जो नाम शुरू होगा उसका रूट वर्ड है एथ, मैथ। यदि आपका कार्बन स्केलेटन 2 का है तो उसका रूट वर्ड है एथ, इस तरीके का। ये 3 कार्बन का है तो देन इसका रूट वर्ड है प्रॉप। नाउ एज पर द बॉन्डिंग उसका सफिक्स फिक्स होता है। ठीक है, सफिक्स हम पढ़ते हैं ना उपसर्ग एंड प्रत्यय हिंदी में, तो क्या करवाते हैं सफिक्स एंड प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मीन्स वी आर पुटिंग एट द फ्रंट, कोई नेम के आगे, एंड सफिक्स बाद में लगाते हैं। वही चीज इसमें कर रहे हैं। तो ये आपके हम बता रहे हैं प्रीफिक्स कि जितने कार्बन स्केलेटन है उसके हिसाब से इसका प्रीफिक्स क्या होगा, रूट वर्ड क्या होगा। अब सपोज एक तो ये हो गया, ठीक है। अब सपोज हमने सबसे पहले वाला कार्बन पढ़ा था, चलो 3 कार्बन का लेते हैं, ठीक है। 3 कार्बन मीन्स प्रॉप। अब यदि मैंने इस कार्बन को 1 2 3 और इसमें सिर्फ मैंने सिंगल बॉन्ड बताया, ठीक है, तो इसका नाम मैं कैसे लिखूंगी, इसका नाम होगा प्रॉप और एल्केन का एन, बिकॉज एल्केन इज फॉर सैचुरेटेड कार्बन, तो एल्केन का क्या आएगा एन, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा प्रोपेन। प्रॉप मीन्स 3 कार्बन 1 2 3 और सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसको बनेंगे प्रोपेन। ओके, अब इसी में अपन थोड़ा ट्विस्ट डालते हैं। अब इसमें हम करते हैं 1 2, एक डबल बॉन्ड दे दिया मैंने। जैसे ही मैंने डबल बॉन्ड दिया कार्बन नंबर कम हो जाएंगे, यहाँ एक ही लगेगा और यहाँ पे 3 लगेंगे, हो गया ना। अब 3 तो है तो इसका रूट वर्ड तो वही रहेगा प्रॉप, बट सफिक्स चेंज हो जाएगा, सफिक्स एल्कीन के अकॉर्डिंग हो जाए तो इट बिकम्स ईन, इट बिकम्स प्रोपीन। ओके, अब देखते हैं दूसरा वाला। अब मैं इसमें ट्रिपल बॉन्ड डाल देती हूँ। ट्रिपल बॉन्ड डालते ही यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, ये ऑलरेडी सैचुरेटेड है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, रूट वर्ड तो वही रहेगा प्रॉप, बट इसके पीछे का सफिक्स क्या हो जाएगा आइन, ये हो जाएगा प्रोपाइन। सो रूट वर्ड एज पर द नंबर ऑफ कार्बन एंड द सफिक्स डिपेंड अपॉन एज पर द बॉन्ड द कार्बन स्केलेटन इज possessing। यदि एक सिंगल बॉन्ड होता है तो इट्स एन एल्केन, और एल्केन होते ही हम क्या करेंगे रूट वर्ड के साथ में एन जोड़ देंगे तो इट बिकम्स प्रोपेन। डबल बॉन्ड आते ही प्रोपीन, ट्रिपल बॉन्ड होते ही इसको हो जाएगा प्रोपाइन। So this is how nomenclature of this carbon skeleton is being decided। ठीक है, अब इसमें एक और ट्विस्ट आता है। एक ट्विस्ट ये आता है आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म मीन्स आपका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जैसे सपोज C4H8 वो सेम रहेगा, बट उसके जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, चलो 5 कार्बन का एक बार बनाते हैं। आइसोमेरिज्म बेसिकली आपके 10th में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है कि स्ट्रक्चर चेंजेस इज देयर। ओके, सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन सेम बट स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। जब स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने लिया 5 कार्बन का स्केलेटन। कितने कार्बन का 5 कार्बन का स्केलेटन। जैसे ही मैं 5 कार्बन का स्केलेटन लेती हूँ तो ये देखिए एक सिंपल बनाती हूँ मैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैंने ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये ऐसे कार्बन लगा दिए, तो ये तो मेरी स्ट्रेट चेन हो गई। तो मैं इसको क्या बोलूँगी 1 2 3 ये पेंटेन हो गई।
ओके, अब इसका मैं आइसोमेरिज्म कैसे बना सकती हूँ, इसका मैं स्ट्रक्चर चेंज कर सकती हूँ। स्ट्रक्चर कैसे चेंज करूँ? देखो, अभी मेरे पास कितने कार्बन है? 5 है। 1 2 3 4, ये चलो ये हटाते हैं। ये एक एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने। चलिए देखते हैं। अब ये हो गए 1 2 3 4 5, है तो 5 ही, हाइड्रोजन भी सेम रहेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, अब इसमें नॉमेनक्लेचर थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करनी है द लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबी चेन इसमें आइडेंटिफाई करनी है। उसके अकॉर्डिंग आप इसको नॉमेनक्लेचर करेंगे। देखिए, एक चेन इसमें ये हो सकती है लंबी, दिस इज चेन नंबर 1। एक चेन इसमें ये हो सकती है। जब मैं दोनों चेनों को देख रही हूँ तो कार्बन तो 4 ही है ना? 4 ही कार्बन है, तो मीन्स चेन चाहे मैं ये लूँ, नेम चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज़ इसमें ये देखनी है आपको, यू हैव टू चेक कि वेयर द ब्रांचिंग इज़ नियर। आपने यदि कोई ब्रांच स्ट्रक्चर बनाया है, तो कौन से कार्बन से वो ब्रांच स्ट्रक्चर पास में पड़ रहा है, किस कार्बन नंबर से। देखो, अब मैं यदि ये वाली चेन लेती हूँ, तो ये दिस वन माय फर्स्ट कार्बन, दिस विल बी माय सेकंड कार्बन, दिस विल बी माय थर्ड कार्बन, दिस विल बी माय फोर्थ कार्बन। ये फर्स्ट चेन का है। सेकंड चेन देखो, सेकंड चेन सपोज मैं ये वाली लेती हूँ, तो इसमें फर्स्ट कार्बन, second carbon, third carbon, fourth carbon. Now there is the same thing. If I am taking this chain or if I am taking this chain, both the chains, in both the chains, the number on second carbon only the branching is happening. So any chain I can finalize. ठीक है, अब यहाँ पे हमारी लगाई है ब्रांचिंग। सपोज मैं ये वाली चेन फाइनल करती हूँ कि भाई ठीक है, मैं ये करूँगी, चाहे ऊपर करूँ चाहे नीचे करूँ, सेम है। ये वाला जो पोर्शन है दैट इज सी। अब इसके साथ हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच है। मीथेन हमें पता था कि CH4 को हम मीथेन बोलते हैं। ठीक है, इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन माइनस किया और मुझे मिला CH3, उसके साथ एक बॉन्ड। सो दिस मीथेन हैज बिकम मिथाइल। ये मीथेन जो था, मैंने एक हाइड्रोजन माइनस करके इसको ब्रांचिंग में लगाया, तो नाउ इट बिकम्स मिथाइल। तो इस ब्रांच का जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे वो ये होगा, सेकंड कार्बन पे मिथाइल अटैच है, 2 मिथाइल, और ब्रांच मैंने जो सेलेक्ट करी वो होगी 1 2 3 4, तो ये हो जाएगी 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब देखिए, ये इसका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। कैसे किया मैंने, यहाँ मैंने स्ट्रेट चेन करी तो इसका नाम आ रहा था पेंटेन। यहाँ मैंने इसकी चेन बना दी। जैसे ही चेन बनाई तो मैंने क्या किया, कार्बन को नंबर दिया। कार्बन को नंबर कैसे देंगे, जहाँ से ब्रांच जो है पास में पड़े और मैक्सिमम लॉन्गेस्ट चेन हो, वो मैंने दिया। तो सेकंड कार्बन पे मेरे ब्रांच आई, तो मैंने लिखा 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो क्या हुआ, फिजिकली जो नेम है वो चेंज हो गया, पर यदि मैं इसका वो चेक करूंगी, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, इसमें भी C5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10, C5H12 है, और इसमें भी क्या हुआ, C5H12 है। So there is no change in molecular structure, there is a change in the arrangement of it, and then it is known as isomerism, and basically it is an structural isomerism. आया समझ में, या एक और एग्जाम्पल देखें? चलो एक और देख लेते हैं। अब देखिए C6 से बनाते हैं। अब C6 होते ही बताओ एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n + 2। तो क्या बनेगा, C6H, 6 2 ज़ा 12, तो H14, 14 बनाते ही क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। आई एम नॉट मेकिंग हाइड्रोजन, आई एम जस्ट शोइंग यू 3, दिस ओनली। एक तो ये हो गया। अब इसका जनरल फॉर्मूला है तो क्या हो जाएगा, इट इज हेक्सेन। अब इसकी ब्रांचिंग करो। इसमें ब्रांचिंग बहुत तरह तरह की हो सकती है। कैसे हो सकती है, देखिए, एक कार्बन ऐसे कर दिया, 4 ऐसे ले लिए, एक ऐसे कर दिया और एक ऐसे कर दिया। यहाँ पे हो गया, मैंने ये स्केलेटन ले लिया। ठीक है, मैं चाहे ऐसे लूँ, सेकंड कार्बन पे ही पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5, क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन।
और कैसे कर सकते हैं आप? 1 2 3 4 5 6 ये भी बन सकता है। इसमें क्या हो जाएगा? ये वाली चेन आ जाएगी। इट इज़ 1 2 3 4। अब सेकंड कार्बन पे अब ये वाली देखो, इसमें ट्विस्ट है। मैंने ये वाली चेन ली जहाँ पे सेकंड कार्बन पे मुझे मिल रहा है 2 ब्रांच। मैं ये वाली चेन यदि लेती हूँ, इस तरफ से यदि मैं चेन गिनती हूँ, तो क्या होगा मेरा 1 2 3, तब थर्ड कार्बन पे होगा। तो आई शुड गो विद द फर्स्ट चेन। ये वाली चेन लूँगी तो 3 ही कार्बन है, ये वाली चेन लूँगी तो भी 4 कार्बन है, पर सबका सेकंड पे आ रहा है। तो फर्स्ट तो आई विल प्रेफर दिस चेन व्हिच इज़ द सेकंड कार्बन इज़ हैविंग 2 ब्रांच। तो अब इसका नेम क्या हो जाएगा? 2 डाइमिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं। 2 डाइमिथाइल। और ये क्या है? 1 2 3 4। 4 का क्या होता है? एथ मैप मैथ मैथ एथ प्रोपेन ब्यूट, so it becomes butane. So this is then structural isomers of carbon 6। 6 कार्बन का स्ट्रक्चर जो होता है उसका आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आइसोमेरिज्म। अब बात करते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। हमारे इसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो अटैच हो जाते हैं कार्बन चेन से। तो उनके जब वो फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, देन द नेमिंग इज ऑल्सो डिफरेंट। So let's start with the functional group. These are the functional group which are responsible for various reaction, and because of this the properties of carbon chain will also get different. Okay, they variate the properties of carbon chain. अब सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज लेते हैं हम लिखते हैं हेलोजन की। ठीक है, हेलोजन एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें क्या होता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये सब हेलोजन से। तो हेलोजन से यदि अटैच होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रोमो। क्या सफिक्स लग जाता है हमारा? ब्रोमो यदि ब्रोमीन लगा हो, आयोडो यदि आयोडीन लगा हो, फ्लोरो यदि फ्लोरीन लगा हो। ठीक है, कार्बन चेन ली मैंने 1 2 3 और इसमें लगा दिया फ्लोरीन। तो क्या हो जाएगा? 1 फ्लोरो, 3 कार्बन है तो क्या होगा? प्रोपेन। दिस विल बी द नेम। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3। इसमें भी ब्रांच का वही नियम है, जहाँ पे जब हम नंबरिंग करते हैं तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो नियरेस्ट कार्बन, लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन से जुड़ा हो, पास से जुड़ा हो। तो इट बिकम्स 1 2 3, ब्रांच ले ली मैंने, 1 फ्लोरो प्रोपेन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप हेलोजन। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप हम ले लेते हैं OH विच इज हाइड्रोक्सिल इन नेम। और किसका होता है ये? एल्कोहल का, एल्कोहल। और इसका जो सफिक्स लगता है दैट इज ओल। तो मैंने कार्बन स्केलेटन पे लगा दिया ये। तो 2 कार्बन है, तो 1 2, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। एथ मीन्स 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड एन, और प्रेफर क्या हो गया? प्रीफिक्स, इसका सफिक्स क्या हो गया? ओल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। ओके, अब अपन करते हैं COOH which is कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है ओइक। क्या होता है प्रीफिक्स, सॉरी सफिक्स? ओइक। अब यही देखो, 1 COOH, 2 कार्बन हो गए, हो गए। तो ये क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। एथ 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड एन, और उसके पीछे का प्रीफिक्स हो गया इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो 1 फ्लोरोप्रोपेन, एल्कोहल, ऑल, दीज ऑल आर सफिक्स, दीज ऑल आर सफिक्स। ये भी सफिक्स है, इसमें ये भी सफिक्स है। ठीक है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैंने एग्जाम्पल दिया 2 कार्बन, एथेनोइक एसिड। ऐसे ही इसमें एक होता है कीटोन। ठीक है, और कीटोन का
जो ग्रुप होता है दैट इज COO और वो हमेशा सेंटर में लगता है, बीच में लगता है। और इसका सफिक्स जो लगता है वो होता है ओन। क्या बोलते हैं उसको? ओन। तो अब इसका यदि हम बनाएंगे तो देखिए सी, मैंने ये लगा दिया कीटोन, ठीक है। तो अब 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉन, ठीक है। सो दिस वे द फंक्शनल ग्रुप दे कीप चेंजिंग and as per the change the names of the carbon compounds are also being changing. Okay, so these are the major. इसके अलावा अमीन NH3 भी होता है, उसको बोलते हैं अमीन, ठीक है। ये भी होता है एक फंक्शनल ग्रुप, इसको भी लगाओ तो यहाँ पे ये हो जाएगा इथाइल अमीन। तो सेम वे फंक्शनल ग्रुप चेंज होते जाते हैं और उसके सफिक्स चेंज होते जाते हैं, ठीक है। अब ये सब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और कार्बन स्केलेटन प्रेजेंट है तो एक हमारा नया टॉपिक शुरू हो जाता है विच इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं उसको? होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज मींस कार्बन स्केलेटन है, बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है और एक स्केलेटन से दूसरे स्केलेटन में डिफरेंस आता है CH2 एटम का, सिर्फ CH2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस आता है विच इज अ 14 यूनिट, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 12 और हाइड्रोजन का एक का 1 है तो 2 हाइड्रोजन है तो कितने हो गए? 14। देखो होमोलोगस सीरीज मींस इट इज अ सीरीज which is differentiate to another series with only one CH2 molecule, one CH2 unit, or you can say in the terms of 14 AMU, 14 unit से difference होता है। But if it has any functional group, it remain same. Functional group remain same. So carbon skeleton they differ only with one unit that is CH2 और उसका वेट जितना होता है जितना 14 AMU। द फंक्शनल ग्रुप रिमेन सेम एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम। तो क्या क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो भी सेम रहती है। केवल डिफरेंस क्यों आता है? बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिफरेंट होती है, बिकॉज द नंबर ऑफ कार्बन स्केलेटन इज डिफरेंट। क्वेश्चन आता है कभी कभी पूछने में कि भाई केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है पर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट इसीलिए है बिकॉज उसमें कार्बन स्केलेटन के नंबर में डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मुझे एल्कोहल की क्वेश्चन आया आपके पास कि एल्कोहल आपका फंक्शनल ग्रुप है ना, और आपको ले रखा है इथेनॉल, ठीक है। तो इथेनॉल की फर्स्ट की नेक्स्ट 3 होमोलोगस सीरीज हमें बनानी है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द होमोलोगस सीरीज, नेक्स्ट 3 होमोलोगस सीरीज ऑफ इथेनॉल। अब इथेनॉल मैंने बोला तो दैट मीन्स इट हैज 2 कार्बन, ये मेरा बन गया एथेनॉल। अब इसकी कॉन्जुगेटिव सीरीज में बनाऊंगी तो क्या होगा? मैं यहाँ पे इसका होगा ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी? नेक्स्ट सीरीज बनाऊंगी। नेक्स्ट सीरीज कैसे बनेगी? ये तो ऑलरेडी एज इट इज मैं कॉपी कर दूंगी ये वाला पार्ट, ये देखो ये फर्स्ट होमोलोगस सीरीज है इसकी, ठीक है। अब मैंने क्या किया? ये OH यहीं था, मैंने इसमें अब क्या डाला? एक एक्स्ट्रा CH2। ये एक्स्ट्रा CH2 हो गया। जैसे ही ये एक्स्ट्रा CH2 हुआ, इथेनॉल किस में चेंज हो जाएगा? प्रोपेनॉल में। डिफरेंस बिटवीन 1 CH2, तो फर्स्ट होमोलोगस सीरीज क्या हो जाएगी? प्रोपेनॉल। अब देखो सेकेंड वाली देखो, ये 3 तो मैं एज इट इज कॉपी कर देती हूँ क्योंकि वो तो मुझे पता है वो तो है ही। और OH भी मेरा सेम रहेगा, ये मैंने एज इट इज उठा के कर दिया। इसमें मैंने क्या किया? एक CH2 और ऐड कर दिया, हो गया वही डिफरेंस CH2 का। तो ये हो गई सेकेंड होमोलोगस सीरीज।
अब इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल के बाद में क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। ठीक है, अब देखो थर्ड, 3 बनाने को बोला था ना उसने, ये एज इट इज बनाती हूँ मैं। बना दी, 1 2 3 4 ऑलरेडी बना दी। OH भी मेरा कॉमन है। अब मेरे को इसमें CH2 और जोड़ना है, तो मैंने यहाँ पे एक CH2 और जोड़ दिया। जैसे ही जोड़ा, थर्ड होमोलोगस सीरीज बन गई एंड देन इट इज बिकम पेंटेनॉल। दिस इज व्हाट इथेनॉल्स 3 होमोलोगस सीरीज। अब देखिए होमोलोगस सीरीज में डिफरेंस किसका हुआ, डिफरेंस एक CH2 यूनिट का होता है जिसका वेट कितना होता है 40 AMU। Chemical properties remain same because the functional group, there is no change in functional group. Functional group remains same. But physical properties differ because the number of carbon, the carbon skeleton number जो होता है वो change हो रहा है. So this is all about homologous series. ठीक है? I hope समझ में आ गया होगा अब तक.